So today's topic is tourism as a trade. We have chapter 7. Line of national economy. This is your topic of discussion, right? Tourism as a trade. Tourism you have studied somewhere in earlier classes, है ना? And you have seen many foreigners used to come to India to visit various wonderful things, isn't it? That is, most of the people used to visit Taj Mahal in Agra, right? And most of them they used to come to Ajanta and Ellora caves, isn't it? And many people they used to come to watch India's hill stations, right? People from a desert area or people from such geographical area where there is very high temperature, they used to come at hill station during summer season, right, to spend their summer vacation, right? So when they come to India they used to spend so many things, right? So whatever they spend, that is in the form of foreign exchange, right? And government receives foreign exchange from these people. Clear? So these tourist activities, they are very fruitful for national economy. Clear? And it increases our national income. Understand? We have got previous data that from 3 decades, foreign tourist arrivals in the country witnessed an increase of 4.5% in the country. ठीक है, हमारे जो 3 डिकेड्स का अगर हम ले लें, पिछले 3 डिकेड्स का, तो फॉरेन टूरिस्ट दे यूज्ड टू केम, मींस दे केम इन इंक्रीज्ड मैनर, मींस दे इंक्रीज्ड आफ्टर 1 डिकेड. क्लियर? अगर फर्स्ट डिकेड में 100 आया तो दूसरे में 200 आया, तीसरे में 600 आया, तो इस तरह से इंक्रीज हुए, राइट? So this was an increase, and we have seen in 2015, right, the total contribution was 1,35,193. 1,35,193 crore. ठीक है, right, rupees. This much. ठीक है, foreign exchange. Okay, came to India. It came to India from tourism. Okay, understand? Means our country. This is data of in 2015 का डाटा है ये. ठीक है, तो 2015 में इतने करोड़ का हमारा फॉरेन एक्सचेंज आया हमारी कंट्री में. तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाउ फ्रूटफुल इट इज़. ठीक है, इट इंक्रीजेज नेशनल इकोनॉमी विदाउट एडिंग एनी एसेट. इसमें पूंजी नहीं लगानी पड़ी, इस ट्रेड में पूंजी नहीं लगानी पड़ी. हमारा ताजमहल बहुत पहले से बना था. ठीक है, अजंता एलोरा केव्स, इट वाज बिल्ट मेनी ईयर्स एगो, राइट? ओनली वी हैड हाईलाइटेड इट, वी हैड मेड इट्स एडवर्टाइजमेंट, एंड पीपल from different countries they used to come to India to visit all these wonderful things, right? तो इससे हमें क्या हुआ, we are getting huge amount of foreign exchange. ठीक है, तो टूरिज्म एक ऐसा ट्रेड बन गया which is very fruitful one, understand, and it increased our income, right? तो ये जो है 8.03 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिटेड इंडिया. ठीक है, 8.03 million foreign tourists
foreign tourist visited India in 2015. ठीक है. From this data it is obvious that there is promising result. ठीक है. There is you can say effective result in the sector of tourism. ठीक है. This trade it is it needs है ना some more influence. It should be advertised more and more so that foreign exchange comes more and more. है ना. तो ये इंटरनेट पे आप देखते हो बहुत सारी जगहों पे इसका डिस्प्ले होता है. ठीक है. इसका ऐड निकलता है इन वेरियस कंट्रीज. दीज एड्स आर सेंट वाया इंटरनेट. ठीक है. एंड दीज कंट्रीज दे आर एक्साइटेड आफ्टर वाचिंग दीज advertisement and they used to visit all these places. ठीक है. तो more than 15 million people are directly engaged in tourism industry. ठीक है. 15 million people, 15 million and more. ठीक है. people are engaged in they are engaged in tourism. ठीक है. They are employed. ठीक है. ये लोग एम्प्लॉयड हैं, इसमें नौकरी करते हैं 15 मिलियन लोग इसी टूरिज्म में. यानी इट्स अ बिग इंडस्ट्री, इट्स अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग यू कैन से प्लेस वेयर वी आर गेटिंग लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इट हैज़ जनरेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. ठीक है. तो इसमें एक चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन. ठीक है. नेशनल इंटीग्रेशन इज ऑल्सो प्रमोटेड. ठीक है. नेशनल इंटीग्रेशन is promoted. Right. National integration means when our tourists used to come to India, right, they had to go to their country again and they had advertised it. ठीक है. So many people, many businessmen and many people who wants to invest in our country, they are excited by these tourist places. ठीक है. उनको काफ़ी एक्साइटमेंट होता है कि भाई इंडिया में अगर हम अपनी पेप्सी की एक जो है बॉटलिंग प्लांट लगा देते हैं तो इसी बहाने हम लोग वहाँ ताजमहल देखने जाएंगे, है कि नहीं. इसी बहाने उसके और भी प्लेसेस को विजिट करेंगे क्योंकि उसका कल्चरल हेरिटेज बहुत अच्छा है कि नहीं. तो इससे क्या हुआ, मार्केट इंटीग्रेट होता है. हर कंट्री के लोग अब इंटरेस्ट लेना चाहते हैं कि इंडिया हैज़ अ ताजमहल, वन ऑफ द 7 वंडर्स. ठीक है. वी शुड मेक बिजनेस देयर, वी शुड डू ट्रेड एक्टिविटी देयर, है कि नहीं. तो इस तरीके से क्या होता है कि एक इंटीग्रेट होती है मार्केट्स. ठीक है. लोगों के माइंड में एक नया इनोवेटिव आइडिया आता है. ठीक है. कि भाई इंडिया में इतना कल्चरल हेरिटेज है, ऐसे ऐसे वाइल्ड स्पेसीज है, वहाँ हमें उनको विजिट करने का एक चांस मिलेगा, है कि नहीं. तो इट इज़ बेटर, इट इज़ गुड हैबिट टू मेंटेन ट्रेड एक्टिविटी विद इंडिया. तो इसी को कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन. ठीक है. मतलब कई नेशंस के लोग इंटीग्रेट होंगे, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, बर्मा है, रसिया है, फिर और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, सब इंटीग्रेट होना चाहेंगे. फ्रांस है, बहुत सारी कंट्रीज हैं. ठीक है. तो वो ऑटोमेटिकली टूरिज्म के बहाने इंटीग्रेट होते हैं. राइट. और इसके साथ साथ लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल परस्यूट को ये जो है सपोर्ट करता है. इट सपोर्ट ठीक है, कल्चरल हेरिटेज. राइट. कल्चरल हेरिटेज एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट्स. क्लियर. तो हमारे जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स मीन्स व्हाट लोकल थिंग्स वी आर मेकिंग. अंडरस्टैंड. हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, जैसे इन हिमाचल प्रदेश की कैप बहुत पॉपुलर है. हिमाचल प्रदेश का जो कैप होता है इस तरीके का होता है, इन दिस वे, और इस पर एम्ब्रॉयडरी की होती है बहुत अच्छी. ठीक है.
ऐसे ऐसे एम्ब्रॉयडरी की होती है। तो जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो इसको परचेस करते हैं। इसमें जेम्स वगैरह लगे होते हैं, स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स आर एम्बेडेड हियर, अंडरस्टैंड। तो इसको लोग खरीद के ले जाते हैं। तो ये आपका क्या है, लोकल हैंडीक्राफ्ट है। जो लोग इस टोपी में इंगेज हैं उनका खुद दिख रहा है कि नहीं। फिर ऐसे ही बहुत सारे मेनी थिंग्स, ठीक है, हैंडलूम्स, बहुत सारे हैंडलूम्स जो है क्या कहते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ कि भाई इट इज़ फ्रॉम इंडिया। हमें कुछ ले जाना चाहिए यूरोप में, ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई देखो वहाँ हमने हिमाचल प्रदेश की कैप खरीदी है। उसको बहुत शान से लोग कहते हैं, है कि नहीं, इट इज़ फ्रॉम इंडिया। उससे उनका प्राइड बढ़ता है कि नहीं, कि हमने इंडिया से खरीदा। तो इस तरीके की मतलब जो है क्या है कि टूरिज्म इट सपोर्टेड योर लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। टांडा आएंगे तो टांडा टेरिकॉट खरीद के ले जाएंगे, है कि नहीं। यहाँ बहुत टेरिकॉट बनता है टांडा वाला, राइट। फिर उसके बाद जो है और भी बहुत सारे एरिया, वहाँ के फ्रूट्स बहुत पॉपुलर हैं, है कि नहीं। कहीं पे कैश्यू नट पॉपुलर है, राइट। जो जो चीज़ें जहाँ होती हैं वो उनका क्या है, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स में आ गया। बहुत सारी चीज़ें हम लोग के यहाँ पे भी जो है लोकली बनती हैं, है कि नहीं। बहुत सारे कंटेनर्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, क्लियर। बहुत सारे और क्राफ्ट वर्क हम लोग यहाँ करते हैं इंडिया में, ठीक है। उसको भी लोग परचेस करते हैं। जब देखते हैं मार्केट में लगा हुआ वुडन वर्क, हिमाचल प्रदेश में स्टिक वगैरह आती है कि नहीं। और ऐसे क्या कहते हैं, रॉड आता है। फिर उसके अलावा चाबी के गुच्छे आते हैं बढ़िया बढ़िया फैंसी स्टाइल में, सब खरीदते हैं टूरिस्ट लोग, है कि नहीं। ताजमहल देखने जाएंगे तो ताजमहल का मॉडल ही खरीद लेंगे, मार्बल का बना हुआ है, वहाँ बहुत सारा बिकता है, अगर कोई गया होगा देखा होगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, दे आर लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, दे आर यू नो, दे बिकम्स पॉपुलर एंड देयर बिजनेस इंक्रीजेस, क्लियर। और इसके साथ साथ कल्चरल हेरिटेज, हमारा जो कल्चर है वो आपका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इंडियन कल्चर्स को भी वो लोग अडॉप्ट करते हैं। कहते हैं इंडिया के बारे में, कहते हैं होली फेस्टिवल, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, दे एंजॉय इट, है कि नहीं। होली फेस्टिवल को भी होली खेल लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद जैसे ईद बकरीद आ गया, उस समय कोई टूरिस्ट आया, ठीक है, उसने भी इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया। उसने कहा अरे ये तो बहुत ही अच्छा डाइवर्स कल्चर है इंडिया में, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके यहाँ के और बहुत सारे नेशनल बिल्डिंग्स जब देखते हैं, रेड फोर्ट वगैरह देखते हैं, ठीक है, फिर टॉम्स वगैरह, कुतुब मीनार, दे आर वेरी पॉपुलर थिंग्स, है कि नहीं। तो इसको देखने के बाद उसका वीडियो बनाते हैं, फोटो स्नैप करते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि इन सारी चीज़ों में जगह जगह पे उसका जो है चार्जेस लगते हैं, तो सब लोग फॉरेन एक्सचेंज पे करते हैं, क्लियर। अभी आप कुतुब मीनार देखने जाएंगे तो वहाँ पे गेट पर ही काउंटर बना होता है, वहाँ आपको टिकट लेके अंदर जाना है, होता है ना। तो उसमें क्या है कि भाई वो सारे टूरिस्ट वगैरह ज़्यादातर जाते हैं उसमें, है ना। इसी तरह सारनाथ आप चले जाइए, म्यूज़ियम है, ठीक, वहाँ पे सारनाथ के वो बने हुए हैं बहुत सारे, अशोक पिलर, ठीक है, उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। तो उसका 50 रुपीज़ पर हेड लगता है। ऐसे ऐसे करके चार्जेस हैं। तो इससे कंट्री को फ़ायदा होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है। अब इसके बाद इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट कल्चर एंड हेरिटेज। इट डेवलप्स इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अब हमारे कल्चर को देख करके अदर कंट्रीज के लोग अपनी पॉलिसी बनाते हैं, दे मेक्स देयर पॉलिसी कि भाई इंडिया इज़ वेरी जेनरस कंट्री, वहाँ रिच हेरिटेज है, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, वेरी काइंड पीपल, वेरी ऑनेस्ट पीपल, ठीक है, वेरी हेल्पिंग नेचर पीपल। तो इससे क्या होता है, उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है और वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इज़न्ट इट। हमारे यहाँ पे इतनी सारी कंपनीज जो है आज फॉरेन की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, तो वो हमारी कंट्री का क्या है, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उन्हें लगा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, ठीक है, उनको लगा कि जो है ये हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हमने इंडस्ट्री लगाई है नोएडा में और वहाँ पर हमें 5 साल तक इंडिया में टैक्स ही नहीं देना है, इतनी अच्छी कंट्री है। तो एक अंडरस्टैंडिंग बनी, राइट। तो ये और इसके साथ साथ दूसरी अंडरस्टैंडिंग क्यों इसके साथ बन रही, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे वंडर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे बहुत सारी जो चीज़ें बहुत सारी कंट्रीज़ में नहीं है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स दे आर मीन्स दे हैड डेवलप्ड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग्स, क्लियर। इसके बाद आता है
Foreign tourists visit India. Why? Foreign tourists visit India for foreign tourists visit India. ठीक है, फॉर राइट, किसके किसके लिए विजिट करते हैं? ठीक है, 5-6 चीजें हैं जिसके लिए वो लोग यहाँ विजिट करते हैं। सबसे पहला क्या है कि हाँ, फॉर हेरिटेज टूरिज्म। ठीक है, एक उनका हेरिटेज टूरिज्म है। ठीक है, राइट, एक होता है हेरिटेज टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, फिर एक है इको टूरिज्म। ठीक है, इको टूरिज्म मीन्स इंडिया इज इको फ्रेंडली। ठीक है, यहाँ पे एनवायरनमेंट की तरफ काफ़ी ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे सिस्टम्स हैं जिससे हम लोग एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाते हैं। तो वो सोचते हैं कि इंडिया आकर के जो है हम लोग बहुत सारे लेसन्स लेंगे। इंडिया की जो है यहाँ के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल एरिया है, दे आर वेरी ग्रीन बिकॉज दे हैव डेवलप्ड एफॉरेस्टेशन। ठीक है, इसलिए टूरिस्ट इंडिया में आते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एडवेंचर टूरिज्म। ठीक है, एक होता है एडवेंचर टूरिज्म, इंडिया में एडवेंचरस चीज़ें हैं, एडवेंचर टूरिज्म। ठीक है, एडवेंचर टूरिज्म मीन्स इंडिया हैज़ माउंटेन्स वेयर वी कैन डू ट्रैकिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है माउंटेनियरिंग कर सकते हैं, एवरेस्ट पे चढ़ सकते हैं, है कि नहीं? तो एक एडवेंचरस टूर है, अंडरस्टैंड। इंडिया में और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स वगैरह हैं जो कि एडवेंचरस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी एडवेंचर है, राइट। और इसके साथ साथ जो है कल्चरल टूरिज्म। ठीक है, एक है कल्चरल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म है इंडिया में। ठीक है, दे आर कल्चरल टूरिज्म। फिर इसके बाद है मेडिसिनल। ठीक है, या मेडिसिनल टूरिज्म। यहाँ पे बहुत जड़ी बूटियाँ हैं इंडिया में, इसलिए लोग टूर करते हैं। ठीक है, फिर एक है बिजनेस टूरिज्म। इंडिया में लोग बिजनेस के लिए टूरिज्म करते हैं। ठीक है, लोग टूरिस्ट इंडिया में आते हैं और यहाँ का कल्चरल हेरिटेज स्टडी करते हैं और उसके बाद बड़े बड़े होटल्स में स्टे करते हैं और वहाँ से उनकी मीटिंग्स होती है, बिजनेस मीटिंग्स। ठीक है, वो डीलिंग करते हैं। ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ पे इस तरह की कंपनी है और हम लोग इस तरह का मोटर बनाते हैं, आपके इंडिया में जो है जितनी भी फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज है वहाँ के लिए बहुत सूटेबल है। तो जितनी फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज है सबके CEO से उनकी मीटिंग होती है ऑनलाइन। ठीक है, चाहे जूम मीट से मीट करते हैं, चाहे पर्सनली मीट करते हैं। ठीक है, और उनको मोटिवेट करते हैं, राइट। और उसके बाद उनका सेल होता है ना। बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडिया में टूरिस्ट बन के आते हैं और उसके बाद अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मार्केट सर्च करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उनका सेल बढ़ता है, उनकी डीलरशिप बढ़ती है, राइट। हमारी कंट्री के भी लोग टूरिस्ट बन के जाते हैं, जैसे टाटा है, टाटा ऑटोमोबाइल्स है कि नहीं, और बहुत सारे कंपनीज हैं जो इंडिया में बनाते हैं। तो ये भी ऐसे टूरिस्ट बन के जाते हैं और फॉरेन में भी वो लोग मार्केट सर्च करते हैं अपने इंजन्स के लिए। ठीक है, तो ये है आपका बिजनेस टूरिज्म। तो टूरिज्म से जो है एक तरफ तो इन्होंने नेशनल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज को विजिट किया, वहीं पे अपने बिजनेस को भी इन्होंने एक शेप दे दिया, अंडरस्टैंड। तो टूरिज्म जो है इससे क्या है, इट हैज़ डुअल नेचर। ठीक है, ऑन वन हैंड इट मेक्स raises the economy of that country where they had visited. On the other hand, they had also spread their business. एक तरफ दूसरी तरफ इन्होंने अपने बिजनेस को भी फैलाया। ठीक है, और इसके बाद जो मेडिसिनल टूरिज्म है, इंडिया इज इंडियाज नॉर्दर्न प्लेन एंड माउंटेन। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन इंडिया का हिमालय, इट हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ हर्ब्स। ठीक है, most of the herbs they are not detected, still not detected, and they are making research. So these tourists used to come and visit northern Himalaya and they had to search such medicinal plants. ठीक है, and they had to do experiments on them. ठीक है, they had to test their property
and they had to detect their characteristics, and finally they had to make formulae, ठीक है, for such diseases which are not curable, ठीक है, डिजीजेस को क्योर करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन आयुर्वेदा में, ठीक है, आपके हिमालयन रेंजेस में। अभी आप फिर डेक्कन प्लेटो में चले जाते हैं, वहाँ भी बहुत सारे हर्ब्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज हैं, isn't it? So all these herbs, plants and trees, they are also undetected. These tourists used to come, they used to bring out some results from this, isn't it? And they try to make, you know, medicines. Clear? तो ये आपका जो है मेडिसिनल, क्लियर। और इसके साथ साथ जो है एडवेंचर टूरिज्म। इंडिया में एडवेंचर क्यों है? क्योंकि इंडिया इज अ पेनिनसुला, है कि नहीं? इसका कोस्टल जो है लेंथ बहुत ज़्यादा है, राइट? तो ये सब कोस्टल एरिया में दे हैव टू डू राफ्टिंग, ठीक है, वो लोग बहुत सारे एडवेंचरस वर्क करते हैं सी में भी, राइट? और इसके अलावा फिर आपके जो डेक्कन प्लेटू रीजन है, वैलीज है, डीप वैलीज, ठीक है, मसूरी में लोग जाते हैं, हिल स्टेशंस में, वहाँ भी एडवेंचरस एक्टिविटी है भाई, इतना ऊपर चढ़ना फिर उतरना, ठीक है, वो भी ऐसे टेरेन्स में वेयर देयर आर नो रोड्स, ठीक है, दे हैव टू क्रॉस पासेस, ठीक है, पासेस होते हैं उसको क्रॉस करते हैं। सो इन दिस वे, राइट, these things, you know, it becomes a adventurous because it needs courage, है कि नहीं? And you can say means they also have some, they must have, you know, various types of, you know, intellectuals, ठीक है, इनको इंटेलेक्चुअल्स मतलब इनकी जो इंटेलिजेंसी यहाँ पे चेक हो जाती है। भाई हिमालय में ग्लेशियर उधर से आ रहा है, इधर से आप जा रहे हो, कैसे आप बचेंगे? ये भी तो एक एडवेंचर है कि नहीं? फिर जो है क्या कहते हैं लोग, मतलब माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कोई पत्थर उत्थर टूट के गिरा, लैंडस्लाइड हो चुका है, दिस इज ऑल्सो एडवेंचरस, है कि नहीं? तो इसलिए भी बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं, क्लियर? सो इट बिकम्स अ वेरी एडवेंचरस थिंग, ठीक है। फिर क्या है, देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री, ठीक है। हमारे कंट्री में देयर आर मेनी स्टेट्स, isn't it? And they can develop their tourism. यूपी टूरिज्म, उत्तर प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स हैं, राइट, इसके अलावा यूपी में आपका सबसे मेन तो ताजमहल ही है, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिज्म, यू नो, मीन्स यू कैन से प्लेस, क्लियर। सो दिस स्टेट इट हैज़, यू नो, इन्वेस्टेड लॉट ऑफ बजट टू मॉडर्नाइज देम, understand, to decorate them, to again, you know, in the repairing of these, you know, monuments, these temples and these, you know, you can say infrastructures, government used to spend a lot of budget. अभी आपने देखा था 5 ईयर पहले ताजमहल पर मिलियन ऑफ करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट हुए थे, है कि नहीं? नहीं तो करोड़ हो चुका था। ताजमहल का जो रियल मार्बल था वो पूरी तरह से करोड़ हो चुका था, ठीक है। उसकी सरफेस पे, ठीक है, बहुत सारे ऑक्साइड्स बन चुके थे, ठीक है, एंड इट वाज अपीयरिंग वेरी पुअर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे जो है स्टोन्स का जो है टॉप फ्रंट पोर्शन है उसको रिप्लेस किया, फिर से जो है क्या कहते हैं उस पर मार्बल्स लगवाए, क्योंकि जहाँ से मार्बल आया था वहाँ से फिर से मंगा लिया गया, है कि नहीं? मार्बल्स के टाइल्स उसके ऊपर जो है उसको फिर से जो है उसका सरफेस को स्क्रब करके, ठीक है, फिर से उसके पास सेम वैसे ही जो है उसी मार्बल के टाइल्स लगा दिए गए। अब जो है और ब्यूटीफुल लगता है ताजमहल, क्लियर। तो इससे क्या है कि टूरिस्ट व्हेन दे यूज्ड टू कम, नाउ दे आर मोर अट्रैक्टेड, ठीक है। जो पुराने टूरिस्ट थे वो तो वही चीज़ें देख कर गए, लेकिन अब जो लेटेस्ट टूरिस्ट हैं दे आर वाचिंग इट्स न्यू वर्जन। जैसे हमारे ऐप होते हैं ना, एक वर्जन से नए वर्जन में आ जाते हैं, व्हाट्सएप का नया वर्जन आ जाता है कि नहीं, यूट्यूब का नया वर्जन आ जाता है, वैसे ही गवर्नमेंट यूज टू चेंज इट्स वर्जन, ठीक है, सो दैट टूरिस्ट आर अट्रैक्टेड, isn't it? And they means if there is, you know, better thing, attractive things, more and more people will come, isn't it? So there is a need from every state government that they should influence and advertise their tourism event, tourism places, ठीक है। स्पॉट्स जितने भी है टूरिस्ट स्पॉट्स, ठीक है, उसको उन्हें क्या करना चाहिए, डेकोरेट करना चाहिए,
है कि नहीं, उसे रिपेयर करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, है कि नहीं। और जब टूरिस्ट बहुत आएंगे तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वांट टू मेंटेन योर ट्रेड विद अदर कंट्रीज तो दे विल रिक्वायर देयर ओन करेंसी। वो हमारी करेंसी कहेंगे कि हमको हमारी करेंसी में पेमेंट करिए, ठीक है। तो जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज होगा तब उस कंट्री की करेंसी में आप पेमेंट करेंगे, है कि नहीं। या कभी कभी हमें एक्सचेंज करना पड़ता है करेंसी को, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म फॉर अपकमिंग इंडस्ट्री, ठीक है। हमारी कंट्री में बहुत सारे एफर्ट्स हुए, क्लियर। गवर्नमेंट इट हैज़ स्पेशल बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दे प्रोवाइड बजट फॉर इट्स रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, डेकोरेशन, ठीक है। बट इफ़ दे आर ऑनेस्टली स्पेंट, है ना, तभी तो ऐसा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री इट हैव नॉट हैपेंड ऑनेस्टली, है ना। भाई ईमानदारी से नहीं हुआ, उसके बजट को लोगों ने ड्रेन कर लिया, ठीक। पता लगा कि 100 करोड़ रुपीस का पैसा आया था ताजमहल के रिपेयरिंग में, डेकोरेशन में, और पता लगा कि मुश्किल से जो है 20 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट हुआ, 80 करोड़ लोग सब खा गए, है कि नहीं। तो इससे क्या हुआ, अपनी कंट्री का ही जो है क्या कहते हैं, हमारा टूरिज्म अफेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो भाई अगर जितना उतना पैसा अगर लगा देते तो वो तो पूरा एकदम शाइनिंग करने लगता उस पर जो है ऐसे ऐसे मतलब जो है डेकोरेटेड मटेरियल लगा देते, इतने जेम्स लग सकते थे कि उसका तो वर्जन ही चेंज हो जाता, लोग और तारीफ करते उसकी, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली इट कुड नॉट हैपन, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर, इन कमिंग जनरेशन इट इज़ पॉसिबल, है ना। सो टूरिज्म हैज़ अ प्रॉमिसिंग एरिया फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज विदाउट मोर इन्वेस्टमेंट, मच इन्वेस्टमेंट। बाकी चीज़ों में तो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन टूरिज्म में कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। एंड यू नो फॉरेन करेंसी इज कमिंग एट अ यू नो ग्रेट रेट बिकॉज पीपल यूज टू विजिट यू नो फ्रॉम मेनी कंट्रीज, है ना। तो इसमें क्या है कि इसी तरीके से अगर आप जो है इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस को आप शो भी कर सकते हो मैप पे, ठीक है। और इसमें जो है आप बता सकते हो कि कौन सा स्टेट एंड कौन सा यूनियन टेरिटरी दे आर पॉपुलर, ठीक है, फॉर विच यू नो प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है। अभी जब महाराष्ट्र की बात आप करते हो, उड़ीसा की बात करते हो, मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें हैं, खजुराहो टेम्पल्स, ठीक है, उसको आप मध्य प्रदेश में भोपाल के पास है, उसको लोग विज़िट करते हैं। तब ये ड्यूटी किसकी बनती है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, ठीक है। उसको फिर से मॉडर्नाइज करें, है ना, और उसको मेंटेन करें। अजंता एलोरा केव्स, उस पर बहुत सारे केमिकल एक्शंस हो चुके हैं, ठीक है, उसको फिर से डेकोरेट करना चाहिए ताकि टूरिस्ट आए तो उसकी तारीफ़ करें और लोग अट्रैक्ट हों इससे, है कि नहीं तो वहाँ जाएंगे कर अरे इंडिया गए थे, वहाँ तो इतना कोराइजन है कि पूरा का पूरा जो मॉन्यूमेंट है उसका तो स्ट्रक्चर ही बदल चुका है, तो एकदम देखने लायक नहीं। अगर ऐसा कह दिया तो क्या होगा, लोगों का मूड चेंज हो जाएगा जो आना भी चाहते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हमने उसको मेंटेन किया, ठीक है, तो डेफिनेटली दे विल पॉजिटिवली प्रेज इट, अप्रिसिएट इट, है ना। एंड फाइनली मोर एंड मोर पीपल विल कम एंड लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट विल कम टू आवर कंट्री, ओके।